اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 275 سے 281 تک آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ إلی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار عظیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الذین، جو لوگ یاکلون الربا، ربا کھاتے ہیں یعنی سود کھاتے ہیں، لا نہیں یقومون کھڑے ہوں گے، الا مگر کما یقوم الذی اس شخص کی مانند یعنی قیامت والے دن، یتخبطہ الشیطان جن کو شیطان نے چھو کر من المس کیا کر دیا، مخبوط الحواس کر دیا۔ ذالکا اس کی وجہ کیا ہے، بِأَنَّهُمْ کہ انہوں نے قالو کہا تھا، انما البیع بیع ہے، مثل مانند ربا ربا یعنی بیع سود ہی کی مثل ہے، وا اور احل اللہ اللہ نے حلال قرار دیا ہے، بیع کس کو، بیع کو، وحرم الربا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن سو جس شخص نے کے پاس یا جاءہ اس کے پاس آیا موعظۃ من ربہ اس کے رب کی طرف سے نصیحت، فانتہا تو پس فلہ اگر وہ اس سے آ گیا باز، ما سلف رک گیا تو وہ ہدایت پا گیا، وامرہ الی اللہ اور کیا اس کا معاملہ کس کے حوالے ہے، اللہ کے حوالے ہے، ومن اور جو عادا اس کے بعد یعنی دوبارہ، فاولئک اصحاب النار یعنی جس نے نصیحت آنے کے بعد بھی دوبارہ سود کو ہی ترجیح دی تو پس وہ کون ہے، دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یمحق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں محبت رکھتا پسند کرتا، کل کفار عظیم نا شکر گناہ گار کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، وقاموا الصلاۃ نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا بس تم ایسا نہ کرو، فأذنوا بحرب من اللہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف یعنی حرب
जंग सुन लो। व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालकुम, और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे असल माल तुम्हारा हक है। ला तज़लिमूना, ना तुम जुल्म करो, वला तुज़लमून, ना तुम जुल्म किए जाओगे। व इन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसर, और अगर मकरूज उसरत तंग दस्त, यानी जो बंदा तंग दस्त हो उसकी तरफ फराखी नज़र से देखो, यानी उसको मोहलत दो। व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, और अगर फिर तुम उसको अगर अपना कर्जा माफ़ कर देते हो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम जानते हो तो। वत्तकू, और उस दिन यौमन, वत्तकू और डरो उस दिन से, तुरजाऊन फीही, जिस दिन तमाम के तमाम लुटाए जाओगे, इल्लल्लाही, अल्लाह की तरफ। सुम्मा, फिर तुवफ़ा, और पूरा कर दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर जान का जो भी बदला है, या मा कसबत, जो उसने कमाया है। वाहुम ला युज़लमून, और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ये सूरत अल-बकरा की आखिरी आयत चल रही हैं। पिछली आयत में हमने देखा था कि सदक़ात की फ़जीलत और सदक़ात को अदा करना, और कौन सा सदका अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। अब उसके बाद अल्लाह सूद के बारे में फरमा रहे हैं। अब सूद क्या होता है, इसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, और ये वो रकम होती है जो कि अपनी मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, दुनियावी अमूर को मद्देनज़र रखते हुए बंदा लेता है, और ये हराम है। और जो सदका होता है वो बंदा वैसे दिखाई, यानी वैसे हमारा माल कम होता है ज़हरी तौर पर सदक़े से, लेकिन सूद से हमारा माल बढ़ता है, क्योंकि वो आ रहा होता है ना। सदक़े में तो हम देते हैं तो हमें लगता है हमारा माल कम हो रहा है, लेकिन सूद में माल आ रहा होता है, इसीलिए हम उसको यानी लेते हुए कहते हैं कि शायद हमारे पास माल ज़्यादा आ रहा है। और सदक़े का बाइस खुदा तरसी, हमदर्दी, और सूद का महरक खुदा से बेखौफी और खुद गर्जी है। यानी ये एक ऐसा अमल है जिसका हुक्म खुदा ने दिया ही नहीं। सदका देने वाला मुश्किलात में मुब्तला लोगों को सहारा देने के लिए दिया जाता है, और सूद दूसरों को मुसीबत में डालने के लिए दिया जाता है। और फिर सदक़े की मिसाल यहाँ पर ऐसे है, लोगों की रग्गू से खून निचोड़ लेता है जो सूद है। और यूं सूद खाना, सदका देने की क्या, ये यानी सूद और सदका एक दूसरे की ज़िद है। जहाँ सदक़े के इतने फ़ायदे हैं, इतने महरक हैं, खुदा की रज़ामंदी है, लोगों की हमदर्दी, उनकी खुदा तरसी के लिए हम करते हैं, वहीं सूद लोगों को नुकसान देता है। और इसीलिए अल्लाह ने, पहले हम ये देखेंगे कि जो रिबा है इसका लुग़वी मानी क्या है और इसका इस्तिलाही मानी क्या है। असल में ये होता क्या है? इसका मानी होता है ज़्यादती, बढ़ोतरी और बुलंदी। इसमें अल्लामा राग़िब बसवानी ने कहा कि असल माल पर ज़्यादती को रिबा कहते हैं। असल माल पर ज़्यादती यानी जो उससे ज़्यादा आएगा वो क्या होगा? रिबा होगा। इसकी दो किस्में हैं, एक तो बिल्कुल हराम है और दूसरा हराम नहीं है। रिबा हराम हर वो कर्ज है जिसमें असल रकम से ज़्यादा वसूल किया जाए या असल रकम पर कोई मनफियत यानी फ़ायदा हासिल किया जाए, वो क्या है? वो हराम है। और रिबा गैर हराम, किसी को हदिया देकर उससे ज़्यादा लिया जाए, वो गैर हराम है, लेकिन फिर उसकी हम सूरतें देखेंगे। इसका इस्तिलाही मानी, इसमें दो इसकी किस्में बताई जाती हैं। एक रबा नसीब बताया जाता है, इसको रबा अल कुरान भी कहते हैं क्योंकि इसको कुरान ने हराम किया है। और दूसरा रबा अल फजल, इसको रबा अल हदीस कहते हैं। और रिबा अल फजल एक जिन्स की चीज़ों में दस्त बदस्त ज़्यादती इवज़, मसलन 4 किलो है गंदम, आप नकद 8 किलो जो गंदम है उसके पैसे ले लें तो वो उसके इवज़ यानी आप उसको फ़रोख्त कर लें, यानी अभी वो चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन आप एडवांस उसकी पेमेंट ले लें। ये इसकी दो किस्में हैं और इसका मानी होता है बढ़ोतरी और ज़्यादती के। असल माल पर जितना भी आप लेंगे चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो हराम है।
देते हुए जितना आपने दिया था वापसी उतना लेंगे वो तो ठीक है, उससे 1 रुपया भी आप ज्यादा लेंगे तो वो फिर आपके रिबा बन जाएगा, सूद बन जाएगा। अब अगर हम देखें कि रिबाल फजल यानी ये क्या है, तो ये एक मखसूस माल को उसकी मिसल से नकद ज्यादती, यानी आपका माल है, मिसाल के तौर पर आप ऐसे समझ लें 4 किलो गंदम है, 4 किलो, ठीक है, आप देते वक्त 8 किलो गंदम के इवज यानी उसको सौदा कर दें, यानी आपके पास मौजूद पड़ी है कितनी, 4 किलो, देते हुए आप जो सौदा बना रहे हैं वो आप 8 किलो का बनाएंगे, ये रिबाल फजल है, यानी ये हदीस से हराम है, कुरान से जो हराम है वो रिबा नसी है। तो इसी तरह सोना है, चांदी, गंदम, जौ, छुआरे और नमक, ये 6 चीज़ें हदीस से साबित हैं कि मतलब इनके बदले आप कुछ भी लेन देन ऐसा नहीं कर सकते। इसकी हदीस भी आई हुई है। इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोना सोने के इवज़, चांदी चांदी के इवज़, गंदम गंदम के इवज़, जौ के इवज़, खजूर खजूर के इवज़, नमक नमक के इवज़ बराबर बराबर फरोख्त करो, बराबर बराबर फरोख्त करो, और नकद बा नकद, और जब ये अजनास मुख्तलिफ हो जाएं फिर जिस तरह चाहो इनको फरोख्त करो, यानी इन चीज़ों के बदले हम दूसरी चीज़ों का सौदा ज़्यादती पर नहीं कर सकते। तो एक रवायत में है कि जिसने ज़्यादा लिया या ज़्यादा दिया उसने सूदी कारोबार किया, देने वाला और लेने वाला दोनों ही बराबर होंगे। और एक रवायत में है 1 दिनार को 2 दिनारों के बदले में, 1 दिरहम को 2 दिरहम के बदले में फरोख्त ना करो, जिसकी जितनी वैल्यू है, जितनी कीमत है उतना ही उसको फरोख्त करो। अपने सिर्फ 2-4 फायदे के लिए यानी एक वक्ती फायदे के लिए दूसरे को कभी भी नुकसान में ना डालो। तो ये सारा सूद के बारे में आया हुआ है। और वैसे भी बंदा किसी को मुशक्क़त में डाले, हमारा इस्लाम बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं करता। और हमारा इखलाक, अगर हम कहते हैं कि हम इखलाक वाले हैं और फिर हम अगले को थोड़ी सी चंद रुपए के लिए मुशक्क़त मुश्किल में डाल दें तो हमारा ये दावा गलत है। सूद खोर के लिए दाइमन दोज़ख की वाइद है हदीस में। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, ये जो अभी मैंने आयतें पढ़ी कि अल्लाह ने कहा कि वमन आदा, जो अल्लाह की नसीहत आने के बाद भी सूद पर लौटा रहा, फाउलाइका साबुन्नार, बस वही लोग दोज़खी हैं, हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में ये जो आती हैं और इनकी वईदें आती हैं, इनका एक ही मकसद होता है कि लोग बाज आ जाएं, लोग खौफे खुदा खाएं। अब सूद खोरी से रुक जाए जो बंदा अल्लाह के यहाँ तौबा ताइफ कर ले, तो उसके लिए अल्लाह ने लिखा है कि फिर इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लाहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर वो लोग होंगे जो नेक अमाल करेंगे और नमाज पढ़ेंगे, ज़कातें देंगे, और फिर उनके रब के पास उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। फिर उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो कभी गमगीन होंगे, यानी उन्हें फिर अपने अमाल, उनके हिसाब किताब की भी फिक्र नहीं होगी। अब रिबा को हराम करार देने की हिकमतें क्या हैं? हर चीज़ की इस्लाम में कोई ना कोई हिकमत रखी है अल्लाह ने। मिसाल के तौर पर जब हमने पढ़ा था कि बेवा और तलाक याफ्ता की जो इद्दत है उसकी भी अल्लाह ने हिकमतें बताई हुई थी। तो इसकी हिकमतें क्या हैं? सूद खोरी की वजह से इंसान बगैर किसी अमल के पैसे कमाने का आदी हो जाता है। यानी क्या, ना वो कोई तिजारत करता है, ना कोई सन्नत व हरफत करता है, बैठे बैठे उसके पास पैसा आने लग जाता है तो उसको आदत हो जाती है, और फिर ये आदत बहुत बुरी होती है। तो इसीलिए एक वजह है कि जिसकी वजह से इसको हराम करार दिया गया।
दूसरी वजह यह है कि सूद में बगैर किसी इवज़ के नफ़ा मिलता है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा मुशक्क़त करे। हमारे यहाँ जो मुआवज़ा है वो वक़्त का होता है, मेहनत का होता है, मुशक्क़त का होता है, कुछ बर्दाश्त करेंगे उसके बदले कुछ मिलेगा। सूद में कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, सिर्फ बैठ कर पैसा मिलता है, तो इसीलिए इसको हराम करार दिया गया है। और एक और बात लिखी हुई है कि कमज़ोरों और नादारों के इस्तेहसाल से मना किया है। जो कमज़ोर और नादार लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है वो ले तो लेते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, फिर उनका खून निचोड़ लिया जाता है जब वो वापस देने लगते हैं। और मैं पढ़ रही थी कि ज़माने जाहलियत में रबा अल नसी, वो ये होता है कि भाई वो जो है ना सूद दे देते थे, यानी कर्जा दे देते थे। हर महीने एक रकम मुतय्यन हो जाती थी जो उस कर्जे के अलावा ली जाती थी हर महीने, और अगर कर्जा जब तक अदा नहीं होता था तब तक भी वो बंदा देता रहता था। उसके बाद भी चंद माह की उसको यानी वो लगा दी जाती थी मोहर के तुमने चंद माह इतने और भी मुझे ये रकम देनी है। तो ये ज़माने जहलियत से चला आ रहा है। और फिर सूदखोरी की वजह से सिला रहमी करने, सदक़ात और खैरात करने, कर्ज़ हसना, ऐसे मकारिम अखलाक मिट जाते हैं। फिर इंसान ज़रूरतमंद गरीब की मदद की बजाय उसको सूद पर कर्ज देने को तरजीह देता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि इसको मैंने हराम करार दे दिया है, ना ये होगा ना तुम लोग दोगे। उसके बाद अल्लाह ने इस आयत में एक बात की कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता और सदक़ात को बढ़ाता है। वल्लाहु, और अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम, ना शुक्र गुनाहगार को पसंद नहीं करता। सूद के माल में बरकत नहीं रहती, जिस माल में सूद का माल शामिल हो जाए वो माल भी ज़ाया हो जाता है, बेशक वो कितनी ही मेहनत का क्यों ना हो। इसमें एक रवायत आई हुई है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं इमाम बहकी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद अगरचे बहुत ज़्यादा हो लेकिन उसका इंजाम माल की कमी ही है। वक्ती तौर पर तो लगेगा हमारा माल बढ़ रहा है, लेकिन एट द एंड तुम्हारा माल रहेगा नहीं, वो ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह इमाम तिबरानी ने हज़रत अबू बरज़ा सलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा रोटी के एक टुकड़े को सदका करता है तो अल्लाह ताला उसको बढ़ाकर ओहद पहाड़ जितना कर देता है, क्योंकि अल्लाह सदकात को बढ़ाता है और सूद को मिटाता है। और पिछले दिनों हमने ये भी पढ़ा था कि एक खजूर जब तुम अल्लाह की राह में खलूस नियत से दोगे, वो बढ़ती 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 एक पहाड़ की मानिंद हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है, कुरान की आयत है कि यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता व युर्बि सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ाता है। लेकिन शर्त क्या है, तुम खलूस नियत से दो, चाहे वो एक खजूर का दाना ही क्यों ना हो। लेकिन सूद जितना भी होगा लेकिन वो क्या होगा, एट द एंड मिट जाएगा, कुछ भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो लोग ईमान लाए, नेक अमाल किए, नमाज कायम रखी, सदक़ात ज़कात देते रहे, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो कभी गमगीन होंगे। ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह कहता है कि मेरी नमाज़ें कायम करो और जो मैंने चीज़ें फ़र्ज़ की हैं उनको अदा करो, हर हाल में उनको अदा करो, उनकी माफ़ी और गुंजाइश नहीं है। और जब बंदा अल्लाह के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करता है तो उसकी मुश्किल जितनी बड़ी ही हो, अल्लाह ताला उसके लिए सबब हीला और वसीला पैदा कर देता है। अगर बंदा दुनिया में भटकता रहे, अल्लाह कहता है भटक लो, जब भटक के आ जाओगे तब मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने करना क्या है। हदीस भी है, हदीस कुदसी के वो शायद गालिबन अल्फाज हैं और बार बार सुनने को भी आते हैं कि अल्लाह कहता है एक बंदे तेरी रज़ा है और एक मेरी रज़ा है। तू चाहता है कि तेरी रज़ा पूरी हो, लेकिन एट द एंड हो मेरी रज़ा ही पूरी होगी।
اور میں صرف تجھے آزمانا چاہتا ہوں کہ تو اپنی رضا پانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور جب تو تھک ہار جاتا ہے ایٹ دی اینڈ تو کیا کرتا ہے، میری رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بہتر نہیں ہے کہ بندہ جو ہے پہلے ہی اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، اور جب ہم اللہ کی رضا کو ہر جگہ سامنے رکھتے ہیں تو ایک دن وہ آتا ہے ہماری رضا بھی اللہ کی رضا بن جاتی ہے، تو وہ مقام بھی آتا ہے زندگی میں۔ تو اسی لیے اللہ کے راستوں پر ہی چلنا چاہیے۔ پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو ان چیزوں کو چھوڑ دو، کچھ نہیں ہے ان میں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مٹا دوں گا، جتنا بھی ہو، جتنا زیادہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا، اللہ جیسے کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایک روٹی کا ٹکڑا صدقہ کیا ہوا احد پہاڑ جتنا بن جائے گا، تو اس کا اپوزٹ تو یہی ہوگا نا کہ اگر سود احد پہاڑ جتنا بھی زیادہ ہوگا تو وہ ایک ٹکڑے جتنا بھی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے بس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ اور پھر اگر تم استطاعت رکھتے ہو، کسی تنگ دست نے تم سے قرضہ لیا ہوا ہے تو چاہو تو اس کو معاف کر دو، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم یہ جان لو کہ وہ تمہارے لیے کتنا بہتر ہے۔ اور اس میں ایک آیت آئی ہوئی ہے اور وہ آیت بہت اہم ہے، پورے قرآن پاک کی وہ آخری آیت ہے جو کہ آیت ربا کہلاتی ہے۔ کون سی آیت کہلاتی ہے؟ آیت ربا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت وہ آیت ہے جو پورے قرآن کی آخری آیت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ ایک دو روایات میں آتا ہے کہ آپ کی وصال مبارک سے 9 دن پہلے آپ نے یہی آیت سنائی، یہ آپ کی یعنی جو وصال مبارک ہیں۔ اس کے بعد پھر امام بخاری، امام ابو عبید، امام ابن جریر بہقی نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت ربا ہے۔ آیت کے یعنی آخری ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس سے مراد یہ ہے یعنی بیوی کے متعلق بھی آیات آئیں، آخری آیت اور آیت ربا، کہ آیت ربا آخر میں نازل ہوئی۔ تمام آیتوں کے لحاظ سے جو آخری آیت ہے وہ یہی آیت ہے، یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے جو کہ سورۃ البقرہ میں اور اس کی آیت نمبر بنتی ہے 275 غالباً۔ تو یہ جو آیت ہے، اور اس میں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم اس اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے جہاں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر مقروض کو مہلت بھی دینا، یعنی اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے، اور قرض اگر معاف کر دو گے تو وہ تو پھر ویسے ہی ایک نیک لوگوں کا عمل ہے، کیونکہ اس میں ایک دو روایاتیں ہیں، سنا دیتی ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے امام احمد نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اس کی مصیبت دور کی جائے، وہ تنگ دست کے لیے کشادگی کرے، اور تنگ دست کے لیے بڑی کشادگی کیا ہوگی کہ آپ اپنا قرضہ معاف کر دیں۔ اور ایک اور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے تنگ دست کی کشادگی تک مہلت دی، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے توبہ کرنے کی مہلت دے گا۔ زندگی میں جب تک وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا تب تک وہ زندہ ہی رہے گا، یعنی اس کو زندگی کی اللہ مہلت دیتا رہے گا۔ یہ مہلت ضروری ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہے اور قرض حسنہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر زیادتی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے جب تمہارے پاس ہے مجھے لوٹا دینا۔ وہ آپ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ دوسرے مہینے یا تیسرے مہینے میں آپ کو لوٹا دوں گا، لیکن خدا کی طرف سے اس پر کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے
कि वो दूसरे और तीसरे महीने नहीं लौटा सकता, लेकिन आप लेने वाले को ज़्यादा याद रहता है और फिर इसीलिए आप उससे कहते हैं कि भाई आपने तो वादा किया था लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब अगर वो कहे कि मुझे फलां महीनों की और मोहलत दे दो, आपको चाहिए कि आप उसको मोहलत दे दें, आप उसको मोहलत दे दें। अब आपका घर उसके पैसों से तो नहीं चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद इसके ही पैसे आएंगे तो मेरा ये काम होगा, वरना तो मेरा घर ही बंद हो जाएगा। क्योंकि हमें जल्दी होती है कि जिसने हमसे जो चीज़ ली है वो हमें लौटाए। तो अल्लाह कहता है जब तुम मेरे बंदे को मोहलत दोगे तो मैं तुम्हें मोहलत दूंगा। और मैं तुम्हें क्या मोहलत दूंगा? तुम अपनी ज़िंदगी में एक बार तौबा करोगे। जब तक तौबा नहीं करोगे मैं तुम्हें ज़िंदा रखूंगा, यानी तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ाता रहूँगा। तो इसी तरह फिर अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल की जाए, मुसीबत दूर की जाए, तो तुम फिर भी उसको मोहलत दो। उसके लिए कुशादगी क्या है? एक तो सूरत है माफ़ कर दो, वो तो बिल्कुल ही ऊपर का लेवल है ना। आप अल्लाह की रज़ा के लिए कहो कि मैंने जितना भी तुम्हें कर्जा दिया था मैं अल्लाह की रज़ा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, वो तो लेवल ही और है। और अगर तुम वाकई ऐसा कर लेते हो तो तुम तो फिर दुनिया में जन्नत कमा लेते हो। और फिर अगर इतना नहीं कर सकते तो उसको मोहलत दो, जितनी वो मांग रहा है उससे एक आध दिन ज़्यादा दो, ताकि तुम्हें ये हो कि अल्लाह तुम अब जिसके लिए आसानी पैदा कर रहे हो, आप बंदे के लिए, अल्लाह के बंदे के लिए आसानी पैदा करो कि अल्लाह कल को तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। तो ये अल्लाह जो है लेन देन में पुख्ता है। हम लोग फिर भी लेन देन में बेईमानी करते हैं, लेकिन अल्लाह जब हमारे साथ जो लेन देन हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं फिर अल्लाह उसमें आसानियाँ पैदा करता है। फिर इसी तरह एक और रवायत भी यही हुई है, इमाम अहमद, बुखारी और मुस्लिम ने हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया, अल्लाह अज़्ज़ वजल के सामने एक शख्स को पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा तुमने दुनिया में क्या किया? वो शख्स कहेगा मैंने दुनिया में एक ज़रा बराबर भी नेकी नहीं की। 3 बार मुकालमा किया जाएगा उस बंदे से, वो तीनों बार यही कहेगा। तीसरी बार जब होगी वो कहेगा दुनिया में अपना फाजिल माल दे दिया करता था, मैं लोगों की चीज़ें फ़रोख्त करता था और अमीर आदमी पर आसानी करता और गरीब को क्या करता था, मैं मोहलत देता था। अल्लाह फरमाएगा हम तुमसे ज़्यादा माफ़ करने के हकदार हैं, मेरे बंदे से दरगुजर करो, फिर उस बंदे को बख्श दिया जाएगा। वो उसका और कोई अमल होगा नहीं होगा, लेकिन एक अमल होगा कि उसके पास माल होगा ना तो वो अपना वही माल गरीबों को दे दिया करता था, अमीरों के लिए आसानियाँ और जो तंग दस्त थे उनके लिए मतलब मोहलतें दे दिया करता था। तो एक इसी नेकी के इवज़ अल्लाह उसे कहेगा तुम्हें बख्श दिया गया है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स का किसी आदमी पर कोई हक हो वो उसको मौखर कर दे तो उसको हर रोज़ सदक़े का अजर मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।